Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit eCity YouTube channel, the one-stop destination for English learning resources. Okay, friends, so we will start our today's video with a very basic question. What is difference between a book and a text? अब बहुत ऐसा obvious सा क्वेश्चन लगता है कि book and text they seems to be the same thing, एक ही बात लगती है, but according to the French critic Roland Barthes, they are not. They are two entirely different things. दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं and it is on this premise, इस बेस के ऊपर रोलैंड बार्थ का बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसे है फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट जो 1971 में पब्लिश हुआ था. इट इज अ शॉर्ट एसे दैट चेंज द वे स्कॉलर्स थिंक अबाउट लिटरेचर इटसेल्फ, द नेचर ऑफ लिटरेचर, द रोल और वी कैन से द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑथर एंड द टेक्स्ट एंड द वर्क. इन सब चीज़ों के ऊपर एक बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड ये एसे लिखा है जिसने इट चेंज्ड द वे वी लुक एट लिटरेचर. तो आज का पूरा वीडियो हमारा इसी के ऊपर है. लेट्स स्टार्ट लाइक ऑलवेज अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द राइटर, टू द एसेइस्ट Roland Barthes. He was born in France in 1915 in Cherbourg and died in 1918 Paris. He was not a literary critic. He was an essayist. He was also a semiotician. Work of a semiotician is to understand, to interpret the sign and the signification, how two things they are related with each other, one becomes a sign and other becomes its signification. इसकी स्टडी को ही semiotics बोलते हैं. So he was a very important semiotician. Now, Roland Barthes, his career has many phases. They were basically when he was quite young, in 50s and 60s, he was associated with the then current philosophical and intellectual trend of structuralism. Structuralism is the method which studies literature and all societal aspect as a system of sign with underlying rules, much like language itself. जब ये structuralism की theory है, ये posit करती है, ये present करती है कि that we can understand every text as made up of certain rules, जिनका foundation एक जैसा होता है and then बेसिकली उसके बाद उसके ऊपर एक प्रोटोटाइप होता है और उसके बेस पर बाकी टेक्स्ट को स्टडी किया जाता है. दिस वाज हिज इनिशियल करियर फेज, इंटेलेक्चुअल फेज. बट in the later 1960s he moved beyond structuralism, especially 1967 में जो उनका famous essay था The Death of the Author. It argued that meaning does not come from the author's intention but from language and the reader. देखिए ये एक बड़ा ही रेडिकल शिफ्ट था ट्रेडिशनल थिंकिंग से, जिसके अंदर ऑथर को जनरेटर माना जाता था, ऑथर को फाइनल वॉइस माना जाता था. जो टेक्स्ट, ऑथर वाज लाइक द फादर ऑफ अ टेक्स्ट, ऑफ अ वर्क. ऑथर की इंटेंशन वाज द प्राइम सोर्स ऑफ गेटिंग द मीनिंग. लेकिन रोलैंड बार्थ ने एक्चुअली में स्ट्रक्चरलिज्म से ऊपर जाकर ये कोशिश करी प्रूव करने की कि इट इज नॉट द ऑथर बट द टेक्स्ट एंड द रीडर, the language and the reader who decide the meaning. That is why the title of the essay is The Death of the Author. This shift from structuralism to understanding the meaning through text, it put him at the crossing point between structuralism on one side, because he was still pursuing the underlying system, जो नीचे base है उसको study करने के लिए, and what came to be called as post-structuralism. Post-structuralism is basically it was set of ideas from different fields that questioned all fixed structures. इसके अंदर deconstruction का सबसे famous phase अगर आप लोगों ने नाम सुना हो या कुछ दरीदा का, he questioned, and all these post-structuralists they wanted to know
what can be the reason behind that certain principle are considered to be the fixed or at the center, why meaning is considered to be stable? क्योंकि structuralism तो total किस base पर था? There is a sign and there is its signified, a signifier and signified, but इन लोगों ने शो करने की कोशिश करी दैट देयर इज नथिंग लाइक दिस स्टेबिलिटी ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड रिलेशनशिप, and there should not be one authoritative source for looking for the meaning. ये कुछ भी नहीं होता है. there is a continuous deferral, एक process चलती रहती है. you reach a point, then you find there is another point. जैसे एक horizon के लिए हम लगातार ट्राई करते रहते हैं, हमें लगता है हम पहुंच गए फाइनल पर, but when we reach the point we find के अभी ये पॉइंट आगे और जाएगा. ठीक इसी तरह से पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो मीनिंग है, स्टेबिलिटी है, सेंटर है, उन सबको स्टडी करते हैं. Now, coming to this particular essay, From Work to Text, it was first published in 1971 and it also belongs to this particular post-structuralist phase of Barthes' thought process. It was actually first delivered as a talk, a short essay, and it is dense with ideas. Though it is very short essay, but it is full of very radical ideas, very thought-provoking ideas, and it has become foundational text of post-structuralist literary theory. Its central purpose is to propose a new way of thinking about literature. How? Barthes suggests that we should stop thinking of literature simply as a work, another work, one work, great work, a finished object which is now complete and which is for us readers के लिए उसको केवल एक pursue करना है, sitting on a library shelf, waiting to be understood. Instead, he proposes a new concept, the text. It is not work, it is rather text. तो वर्क जो है वो एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है समथिंग ऑन विच अ पर्टिकुलर ऑथर हैज लेबर्ड, जिसने ऑथर ने मेहनत करी है, एंड व्हेन द ऑथर हैज रिटन द एंड द प्रोसेस इज कंप्लीट. और अब केवल हम पैसिव रीडर्स उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, डिसाइफर कर सकते हैं उसके मीनिंग को. बात इसकी बजाय न्यू टर्म यूज करता है टेक्स्ट, विच इज ओपन, विच इज अनफिनिश्ड. इट इज समथिंग रीडर हैज टू कंप्लीट. So text is not a physical object, एक बुक की तरह नहीं है. इट इज एन एक्टिविटी, इट इज काइंड ऑफ जिसके अंदर बोथ पार्टीज, द ऑथर एंड द रीडर, दे आर इंटरचेंजिंग देयर थिंकिंग. अ फील्ड ऑफ मीनिंग प्रोडक्शन. ऐसा नहीं है ऑथर ने एक कोड दे दिया है और आपको उसको डिसाइफर दे दिया है, उसने एक पजल दे दिया और आपको उसको सॉल्व करनी है, बट इट इज रादर दोनों, मतलब रीडर भी मीनिंग प्रोडक्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है. समथिंग दैट हैपन्स इन द प्रोसेस ऑफ reading and writing rather than something that simply exists. ये केवल वन वे प्रोसेस नहीं है जिसमें ऑथर जनरेट कर रहा है और रीडर उसको कंज्यूम कर रहा है. तो ऑथर प्रोड्यूसर हो गया और रीडर कंज्यूमर हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज एन एक्टिविटी जिसके अंदर दोनों पार्टेक कर रहे हैं, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ऑथर और एक रीडर. Now Barth organizes his argument about 7 short propositions. जो ऐसे है वो डिवाइडेड है और यही सबसे मेन इसका पार्ट है. ये प्रपोजिशन भी आप इनको कह सकते हो, 7 प्रिंसिपल्स भी कह सकते हो. He doesn't use the word argument because argument means that he is trying to prove a point, some logic he is trying to promote, but rather he is offering a set of related approaches. Why? Because he himself believes कि जो मेरे जो ideas हैं they are not finished arguments, they are just propositions जिसके ऊपर आप भी अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग ला सकते हो, अपने हिसाब से उसको समझ सकते हो. दिस इज हिज होल पॉइंट. नाउ ये जो 7 propositions हैं, they are about the method, the genre, science, plurality, filiation, reading and
प्लेजर। वन बाय वन वी विल टेक ऑल ऑफ दीज मेथड के अंदर बेसिक जो डिफरेंस है, जो इन्होंने एक युग बनाया है कि पोलर बनाया है, देयर इज वर्क एंड टेक्स्ट, देन देयर इज जॉनरे, किस तरह से हम वर्क्स को क्लासिफाई करते हैं, एपिक है, सटायर है, लिरिक है, सोनेट है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, ब्रॉड एंड माइनर जो क्लासिफिकेशन है उनसे रिलेटेड, then sign that there is a signifier and there is a signified, एक particular चाहे वो written कोड हो और उससे हम जो एक फिक्स मीनिंग अटैच करके रखते हैं, बट देयर इज इनफाइनाइट डेफरेंस, लगातार वो आगे बढ़ता रहता है। प्लुरैलिटी, दैट टेक्स्ट इज नॉट समथिंग यूनिक ओरिजिनल, इट इज मेड ऑफ मैनी थ्रेड्स। पुराने बहुत सारे वर्क्स इसके अंदर, जिसको जूलिया क्रिस्टेवा ने इंटरटेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। फिलिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि टेक्स्ट का कोई फादर है क्या, मतलब कोई एक ऑथेंटिक वॉइस है जिसने इस टेक्स्ट को जनरेट करा है। एंड रीडिंग फ्रॉम कंजम्पशन, पैसिव रीडिंग की बजाय प्ले, एक्टिव रीडिंग जिसमें रीडर खुद भी मीनिंग जनरेट करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट, प्लेजर ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट विच गिव्स नॉट जस्ट प्लेजर बट जूसा, इट्स अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है काइंड ऑफ ब्लिस, एक ऐसा ब्लिस जो नॉर्मल प्लेजर से कहीं ज्यादा है। सो Barth opens the essay by asking and explaining that why now this particular debate that there is no work but rather text. He says that a change is taking place, और ये चेंज क्या है, हाउ वी थिंक अबाउट लैंग्वेज एंड देयरफॉर अबाउट लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर का जो मीडियम है वो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के बारे में जो हमारे एजम्पशंस हैं दे आर अंडर वे ऑफ अ चेंज। This shift is connected to development in other branches, जैसे कि linguistics जो study of language है, anthropology जो study of human development है, Marxism जो एक social theory है, psychoanalysis जो एक related with person's mental life है। इन सब में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए, इन सब ने एक कंट्रीब्यूट करा हाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट लैंग्वेज, नेचर ऑफ लैंग्वेज, किस तरह से वो की जाती है। He compares this shift to Einstein's theory of relativity, though बिल्कुल separate field है, that is physics and we are talking about language and literature, but जैसे आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी में बताया दैट रिलेटिविटी assumes कि we have to understand, we have to include observer's frame of reference. आप केवल एक वैक्यूम में बैठकर you cannot create some principle. Relativity means you have also to understand जो ऑब्जर्वर है उसका POV, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक इसी तरह से बात आर्ग्यूज लिटरेरी स्टडी कैन नॉट एक्सक्लूड रिलेशनशिप बिटवीन राइटर, रीडर एंड क्रिटिक। they are not separate entities working in their own sphere. सब अपने अपने एरिया में कैद नहीं है, they all are interrelated. ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। treating them work as some fixed independent object जो ऑथर ने कंस्ट्रक्ट करा है, जिसको रीडर को पैसिवली कंज्यूम करना है और क्रिटिक को उसके ऊपर अपनी कमेंट्री देनी। नो, ये तीनों फील्ड एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो उनका प्रोपोजिशन है दैट इज मेथड। नाउ व्हाट इज मेथड के बारे में बेसिकली बार्थ सेज दैट ये जो डेवलपमेंट हुआ लिंग्विस्टिक्स का, नेचर ऑफ लैंग्वेज का, देयर इज न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी दैट इज नॉट वर्क बट द टेक्स्ट। नाउ द वर्क इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट इट इज बुक जो है इट ऑक्यूपाइज स्पेस, उसकी जगह भी होती है, इट्स आइदर थिक, थिन, लॉन्ग, शॉर्ट, बहुत सारे it is basically there is tactile touch, उसको आप फील कर सकते हो। it can be held in your hand, you can find it on shelf in library, bookshop, you can borrow it, you can lend it। तो ये जो वर्क है ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट की तरह है, it is just like another material object। जबकि जो टेक्स्ट है is not a physical thing, it is
a methodological field. It is an abstract entity. ये बेसिकली बुक के पेज पर लिखे हुए केवल वर्ड्स नहीं है. It exists only in language and our understanding of that language, only in activity of reading and interpretation. तो वर्क तो है, वो तो आपका बुक फॉर्म के अंदर है. You carry it in your bags, in your hands, in your libraries. और अगर अपन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें, आप वर्क को तो पढ़ सकते हो, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, बट टेक्स्ट इज समथिंग एल्स. जब इन योर एक्ट ऑफ रीडिंग, जब आप उस वर्क को पढ़ना शुरू करते हो, अ न्यू फील्ड ओपन्स, दैट इज अ मेथडोलॉजिकल फील्ड. हाउ यू आर स्टडिंग इट, हाउ यू आर मेकिंग द मीनिंग आउट ऑफ इट, वो वहां पर वर्क नहीं रहता, वो टेक्स्ट बन जाता है. इट इज रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन. नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन. ये इसका मतलब ये नहीं है कि जितने पुराने वर्क्स थे देवर वर्क, और जो न्यू लिटरेचर है, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है, दैट इज टेक्स्ट. ही सेज इजीली, हम इसको कैसे समझ सकते हैं, एन एंशियंट वर्क, किसी मिल्टन या शेक्सपियर या होमरिक जो एपिक्स है, दे कैन कंटेन टेक्स्ट. कैसे? इफ दे इन्वाइट द रीडर्स, अगर वो भी रीडर को इन्वाइट करते हैं टू मेक समथिंग न्यू, उसमें रीडर न्यू इंटरप्रिटेशन लाता है, तो वो भी टेक्स्ट हो सकते हैं. एंड मॉडर्न वर्क जो अपने आप को क्लोज रखता है, जो वो सिर्फ वर्क रह सकता है. सो डिफरेंस इज नॉट अबाउट व्हेन समथिंग वाज रिटन, इट इज नॉट टेम्पोरल, ये टाइम से जुड़ा हुआ नहीं है, बट अबाउट हाउ इट फंक्शंस, किस तरह से ये अलाउ करता है एक रीडर को पार्टिसिपेट करने के लिए, मीनिंग जनरेट करने में. इसके लिए बात यूज करते हैं फेमस साइकोलॉजिस्ट याक्वस लाका को. उनका जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन द रियलिटी एंड द रियल. नाउ व्हाट इज रियलिटी? रियलिटी इज समथिंग दैट इज ऑब्वियस, जो डिस्प्लेड है, जो विजिबल है. तो वो रियलिटी जो है, इट इज द शो ऑफ द वर्ल्ड. While what is the real, it is not something concrete, it is something abstract, it is something demonstrated, something we can only approach indirectly. ये हमारी आंखों के सामने स्पष्ट नहीं होता है. this is access to our POV, point of view. तो ठीक उसी तरह से जो रियलिटी है, इट इज लाइक द वर्क, जो शेल्फ के ऊपर है, जो जिसके साथ राइटर का नाम जुड़ा हुआ है, जिसके साथ एक ट्रेडिशन जुड़ा हुआ है. जबकि टेक्स्ट क्या है? इट इज द रियल, जो सामने नहीं है, बट विच वी कैन एक्सेस थ्रू आर इनडायरेक्ट कनेक्शन विद इट, थ्रू आर ओन पार्टिसिपेशन इन इट, जब हम उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन करते हैं. तो वर्क भी ठीक उसी तरह से क्या हो सकता है? इट कैन बी सीन एंड डिस्प्लेड, बट द टेक्स्ट can only be experienced through the act of demonstration. What is यहां पर demonstration का मतलब क्या है? Through the act of reading and interpretation. यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. Reading does not mean वन सिंगल रीडिंग. आप एक ही वर्क, मतलब वो वर्क जिसको आप वर्क कह रहे हो, वो टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट होगा? व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इट, व्हेन यू मेक मीनिंग ऑफ इट, आफ्टर सम टाइम यू रीरीड इट, यू मेक न्यू मीनिंग आउट ऑफ इट. ये प्रोसेस चलती रहती है. इट इज एन ओपन एक्टिविटी फील्ड, इट नेवर सीजेस. ये कभी भी खत्म नहीं होती, ना ऑथर के फाइनल वर्ड लिखने के साथ, ना रीडर की फर्स्ट एक्ट ऑफ रीडिंग के साथ. इट इज ऑलवेज ओपन. ये हमेशा इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस इसके अंदर चलता रहता है. सेकेंड प्रोपोजिशन इज अबाउट जॉनर. नाउ बात सेकेंड पॉइंट इज दैट टेक्स्ट cannot be classified. Watertight classification नहीं हो सकता कि this text is a novel, it is a poem, it is an essay, it is. ये ट्रेडिशनल वे के अंदर जब हम अपना भी स्टडी करते हैं करिकुलम, तो हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है. दिस सेक्शन बिलोंग्स टू द नॉवल, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री. लेकिन अकॉर्डिंग टू बार्ट, सच काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज पॉसिबल ओनली विद वर्क्स. एक टेक्स्ट को आप किसी भी तरह से इस तरह से वाटर टाइट क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो. He gives example of a famous French writer Georges Bataille. Now, what was the point of mentioning this writer? Now, there are questions. आप Bataille को क्या मानेंगे? Was he a novelist, a philosopher, an economist, a mystic?
देयर आर मेनी सच राइटर्स जिनको एक पर्टिकुलर टैग के साथ, एक पर्टिकुलर लेबल के साथ कन्फाइन करना बहुत मुश्किल है. Now Bhatt says textbooks often struggle to classify बटाए, क्योंकि अगर वो बटाए को नॉवलिस्ट कहते हैं, देयर आर अदर सेक्शंस जो कहते हैं उनकी फिलॉसफी भी इंपॉर्टेंट है, कोई उनके मिस्टिक एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है. दिस डिफिकल्टी इज इटसेल्फ प्रूफ कि आप बटाए को जिस तरह से सिंगल पॉइंट में क्लासिफाई नहीं कर सकते. इससे पता चलता है ही वॉज नॉट राइटिंग अ वर्क, ही वॉज राइटिंग टेक्स्ट. वो कन्वेंशनल वर्क जिनको आप क्लासिफाई कर सको, जिनको आप बिल्कुल स्ट्रक्चर के अंदर फिट कर सको, वो नहीं था. ही वॉज ट्राइंग टू, जिसको हम अमीबा शेप कह सकते हैं, लगातार जो उनका चेंज होता हुआ नेचर था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू क्लासिफाई हिज वर्क्स इनटू पर्टिकुलर कैटेगरीज. Now, Barth here also mentions the critic Albert T. Bott, who used the term limit works. Now, what is limit work? Writings that push against the boundaries of genre. ऐसी writings, ऐसे work जिनको क्लासिफाई करना मुश्किल होता है, जो एक जॉनरे होते हैं. अगर जॉनरे है तो जॉनरे के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं कि अगर किसी वर्क को एपिक गिनना है या किसी वर्क को पोइट्री या फिर एसे या शॉर्ट स्टोरी करना है, तो देयर आर सर्टेन कन्वेंशंस, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो फॉलो करें. बट लिमिट वर्क आर दोज वर्क्स which are very difficult to put into such convention. वो इन कन्वेंशन से परे जाते हैं, कुछ कन्वेंशन फॉलो करते हैं, कुछ को वो तोड़ते हैं. And also refer to writer Philip Sollers the idea of the experience of limits. Same thing, experience of limits मतलब जो बाउंड्री है, जिस बाउंड्री से परे वो जॉनरे खत्म हो जाती है. कोई वर्क यदि उसके पार जाने की कोशिश करता है, then it doesn't limit itself to a work, it begins in the boundary of text. These both references actually support Barth's claim that text always tests and exceeds the ordinary rules and boundaries of literature. मतलब समझिए कि अगर पहली बार किसी ने एपिक के अंदर कोई ऐसी चीज, लैंग्वेज चेंज करी. I give you a very recent example of cinematic adaptation of the Odyssey by Christopher Nolan. Now, there are many critics who basically object the use of modern language in the classical epic. कईयों के लिए ये ऑब्जेक्शनेबल है, बट दिस शोज किस तरह से ऑर्डिनरी रूल और बाउंड्री जो लिटरेचर की थी, एपिक की थी, उसको नॉलन ने सिनेमैटिक लिबर्टी, क्रिएटिव लिबर्टी, कुछ भी आप कह सकते हैं, उसको वर्क की जगह एक टेक्स्ट के अंदर चेंज किया है. थर्ड प्रपोजिशन इज दैट ऑफ साइन. It is about how meaning is produced. He explains that a traditional work is closed around a fixed signified and signifier. जिसका मतलब ये होता है कि राइटर ने जो वर्ड लिखा है उसका मीनिंग राइटर ने डिसाइड कर दिया है कि इट इज जस्ट दिस रिलेशनशिप. नाउ this meaning is considered to be obvious as in philology or as something hidden. जिसका मतलब ये होता है कि there is a puzzle, there is a code जो रीडर को क्या करना है, अनकवर करना है. there is nothing else. मार्क्सिस्ट और साइकोएनालिटिक रीडिंग जब हम करते हैं तो मार्क्सिस्ट जो रीडर है वो क्या कोशिश करता है कि इसके पीछे के इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कंडीशन को मैं अनकवर करूं. साइको एनालिटिक रीडिंग क्या करता है, जो साइको एनालिस्ट रीडर होता है वो कि इसके पीछे ऑथर का कौन सा फिक्सेशन हो सकता है, कौन सा रीजन साइकोलॉजिकल हो सकता है जो उसने ऐसे कैरेक्टर्स को जनरेट करा, प्रोड्यूस करा. लेकिन इन सभी के अंदर वर्क इज एक्सपेक्टेड टू इवेंचुअली डिलीवर ए स्टेबल मीनिंग. उनके हिसाब से वो स्टडी होती है, तो ये एक वर्क के अंदर होता है. इसके कॉन्ट्रास्ट में जो टेक्स्ट है, इट रिजेक्ट्स, इट रिफ्यूजेस to be bound by one particular meaning. It constantly differs meaning. It privileges the signifier, the word or sign itself rather than any single fixed meaning behind it. देखिए रिलेशनशिप किस तरह से होता है. There is a signifier जो एक सिंबल है और there is a signified जो सिंबल से हम इंटरप्रिटेशन लेते हैं.
तो जो ट्रेडिशनल वर्क होता है उसमें सिग्निफाइड इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो टेक्स्ट होता है उसमें सिग्निफायर इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड इटसेल्फ है, क्योंकि उससे आप केवल एक सिग्निफाइड नहीं, अनेक एंडलेस सीरीज ऑफ सिग्निफाइड क्रिएट कर सकते हो। और इसी कारण इस प्रोसेस को बात क्या बोलते हैं, द इनफाइनाइट डेफरमेंट ऑफ सिग्निफाइड, मतलब कभी भी एक जगह जाकर मीनिंग नहीं रुकता है। टेक्स्ट इज नेवर फाइनल, इट कीप्स मूविंग, स्लाइडिंग, ये आपकी फाइनल ग्रेस्प से परे जाता रहता है, जनरेटिंग फर्दर सिग्निफायर्स रादर देन सेटलिंग इनटू वन इंटरप्रिटेशन। यही चीज एक वर्क को टेक्स्ट बनाती है कि टेक्स्ट की रीडिंग कभी भी फाइनलाइज, या जिसे हम कहते हैं द लास्ट एंड द वन एंड ओनली इंटरप्रिटेशन, द फाइनल मीनिंग, इस तरह का फ्रेज हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज अबाउट प्लुरैलिटी। नाउ टेक्स्ट इज फंडामेंटली प्लूरल। तो यहां प्लूरल से मतलब क्या है, इट डज नॉट हैव वन सिंगल मीनिंग बट मल्टीपल पॉसिबल मीनिंग्स। वही बात जो अभी हमने पीछे करी, क्योंकि जब आप किसी एक फिक्स रिलेशनशिप पर नहीं पहुंचे हो सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में, इसका मतलब इसका जो इंटरप्रिटेशन है इट कैन बी डन इन मोर देन वन वे। अगर इंटरप्रिटेशन एक से ज्यादा तरीके से हो सकता है तो पॉसिबल जो मीनिंग है वो भी इट कैन बी मोर देन वन। इट इज बिल्ट ऑफ प्लुरैलिटी इटसेल्फ। He basically tries to explain his idea with the example of an image. He imagines himself walking beside a valley, a kind of oath. What is an oath? Oath is a North African term for a dry riverbed. Now इस dry riverbed के अंदर there are unconnected impression there, that is of light जो visual से related है, color, then there is heat, there is sound, there are voices, there are gestures, वो सारी चीजें दो unconnected to each other लेकिन एक impression create करती हैं। None of these impression can be reduced to one single meaning. आप ये नहीं कर सकते हो कि इन सब से मिलकर ये सारे सिग्निफायर्स हैं और इन सबका एक सिग्निफाइड है। इट इज जस्ट लाइक हर जो पर्टिकुलर एक सेंसरी एक्सपीरियंस है वो एक अलग तरह का इंप्रेशन क्रिएट करता है। इट इज सिमिलरली लाइक रीडिंग अ टेक्स्ट, different half familiar codes coming together in a way that can never be repeated or fully explained। क्योंकि हर बार जब आप पढ़ते हो there are shades of meaning, हर मीनिंग का शेड चेंज होता चला जाता है। कभी कोई इंपॉर्टेंट मीनिंग निकलता है, कभी कोई सप्रेस हो जाता है, कभी कोई रिसर्जेंट रीएमर्जेंट हो जाता है, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। So he makes an important claim about इंटरटेक्चुअलिटी। व्हाट इज इंटरटेक्चुअलिटी? हालांकि बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, जूलिया क्रिस्टेवा नाम की एक थियरिस्ट से जुड़ा हुआ है, जिनका कहने का मतलब क्या है कि एक टेक्स्ट में पुराने किसी टेक्स्ट का रेफरेंस होना। तो जनरली ऐसा मानते हैं कि लिमिटेड होता है, लेकिन बात क्या मानते हैं, एवरी टेक्स्ट इज वोवन आउट ऑफ कटेशंस, रेफरेंसेस, इकोज फ्रॉम अर्लियर टेक्स्ट। एक बहुत फेमस कोट है इनका, एवरी टेक्स्ट इज ऑलवेज ऑलरेडी रिटन। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया है, जो कुछ लिखते हो वो पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूर लिखा हुआ है। These citations, ये जो रेफरेंसेस, ये जो कोटेशंस होते हैं, दे आर नॉट डायरेक्ट। आप सीधा शेक्सपियर के सोनेट को कोट नहीं करते हो, दे आर एनोनिमस, दे आर अनट्रेसेबल एंड येट ऑलरेडी रेड। देयर इज नथिंग न्यू। जो हो सकता है वो चीज आज किसी रीडर के लिए अनट्रेसेबल हो, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि इट हैज नेवर बीन यूज्ड। सो दिस इज कॉल्ड इंटरटेक्चुअलिटी और प्लुरैलिटी ऑफ अ टेक्स्ट जो ऑलरेडी उसके अंदर है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि वी शुड ट्राई टू ट्रेस अ वर्क बैक टू इट्स सिंगल ओरिजिन और इन्फ्लुएंस। हर वर्ड को हम टेस्ट करें कि ये फर्स्ट टाइम कहां पर यूज हुआ था, बिकॉज दैट सर्च बिलोंग्स टू व्हाट बार्ट कॉल द मिथ ऑफ फिलिएशन। ये मिथ, ये एजम्पशन कि कोई ना कोई जरूर था जिसने फर्स्ट टाइम इसको कंस्ट्रक्ट करा था, इसको यूज करा था। ये जो फिलिएशन की मिथ है, आगे ये बताएंगे फिलिएशन या फादर वाले के अंदर नेक्स्ट प्रोपोजिशन के उसमें। नाउ ही आल्सो गिव्स एग्जांपल ऑफ बाइबल, गॉस्पेल ऑफ मार्क, जिसके अंदर अ मैन इज possessed by a demon and he says my name is legion for we are many।
So Barth says that this is like demon in this story. Text is not one but we are many. उसके बहुरूप हैं, उसके मल्टीपल फॉर्म है, और कभी कोई फॉर्म हमारे सामने आता है एक रीडर के सामने, सेकंड और नेक्स्ट रीडिंग में कोई दूसरा फॉर्म आ जाता है. Fifth proposition is that of filiation. It concerns authorship. Who is the father of a work? He argues that a traditional work जो होता है bound to the idea of author as its father and owner. उसी ने origin करा है. The work is like the prodigy, is like जो work है वो पूरी तरह से generate किया हुआ है. Society reinforces this through legal ideas like copyright. किसके पास इसका copyright है. Scholarship reinforces it by respecting the author's declared intention. Author ने ये work इस particular intention के साथ लिखा है, ये memory में लिखा हुआ है, ये criticism में लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह. But on the other hand, text is without the inscription of the father. There is no father to the text. Work का हो सकता है, text का नहीं है. Barth uses the metaphor of a network rather than organism. कैसे? A work is imagined as something that grows biologically, almost like a living thing with a single origin. जैसे एक seed से धीरे धीरे होता हुआ एक tree बनता है, तो seed is the root, is the मूल, वो father की तरह है. So it is like organism, जबकि text is like network. It spreads outward and once this network is established, एक बार अगर आप वेब बना दोगे, you cannot pinpoint a particular thing कि this is the center or root. सभी इंटरकनेक्टेड है आपस में. तो वर्क जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है जो एक सिंगल सीड से जनरेट हुआ है, जबकि टेक्स्ट जो है वो एक नेटवर्क है जिसकी ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है. Does this mean that there is no author? No, the author does not disappear completely. ऐसा नहीं है कि author खत्म ही हो गया, but author can still come back into the text, but only just as another reader, just as guest, not as an authority. Author जब भी आए तो वो ये claim नहीं कर सकता what I am saying is the final word. No, he can just be guest. He can just be another reader, और guest इस सेंस में he can throw light on one particular shade of a meaning. इससे ज्यादा नहीं. तो इसके लिए he gives example of French writer Marcel Proust and Jean Genet. Their own lives can be read as text shaped by their writings. Vice versa. जो यूजुअल एजम्पशन होता है वो ये मान के चलता है कि बायोग्राफी से हम लिटरेचर को, किसी राइटर के वर्क को समझ सकते हैं, जबकि इसके अपोजिट बात क्लेम ये कर रहे हैं कि उनके वर्क को पढ़कर हम उनकी लाइफ को समझ सकते हैं. द सिक्स्थ proposition by Barth is reading. It distinguishes between reading as consumption, that is passive reading, and reading as play or production. ट्रेडिशनल वर्क्स जो होते हैं दे आर टिपिकली कंज्यूम्ड, रीड पैसिवली. आपको बता दिया जाता है कि इस तरह से पढ़कर आपको इसमें ये अच्छा लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां फोकस करो. हाउ वी रीड इन अ ट्रेन फॉर एंटरटेनमेंट. ऑन द अदर हैंड टेक्स्ट demands active participation. It is an active production of meaning. रीडर खुद एफर्ट करता है समझने का. It's like playing a game. गेम के अंदर you cannot be passive. आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है. पीस ऑफ म्यूजिक. म्यूजिक के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इंस्ट्रूमेंट लिया और म्यूजिक क्रिएट होगा. You have to play it to create music. Similarly, टेक्स्ट जो है वो एक रीडर को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाता है मीनिंग जनरेट करने के लिए. Barth makes a striking comparison to music. Earlier historical periods के अंदर ordinary people played music themselves. Later, music becomes something performed by professionals and simply listened by the पैसिव ऑडियंस. तो अंतर समझ में आ गया होगा. जो म्यूजिक आप सुनने जाते हैं दैट इज लाइक रीडिंग अ वर्क. आप केवल वहां बैठे सुन रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हो. लेकिन जो म्यूजिक आप खुद प्ले करते हो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर दैट इज लाइक टेक्स्ट, जिसके अंदर आप खुद उसको क्रिएट कर रहे हो. द टेक्स्ट इज द न्यू काइंड ऑफ म्यूजिकल स्कोर
which invites the reader to become a co-author. जैसे author ने किसी intention के साथ एक particular meaning generate करा, similarly the reader is trying to create something more out of that written text, actively completing the piece rather than simply consuming it as a finished closed object. The last proposition is that of pleasure. Now, why does we read? It is pleasure of reading a work, that is pleasure of consumption, just eating a sweet. मतलब यहाँ पर आप केवल आप खुद आपने कुछ क्रिएट नहीं कराया, you are not active, you are just enjoying, just like looking at nature. And the pleasure of the text, which he links to the French term jouissance. Now, what is jouissance? It is a strong, more intenser form of pleasure. It is orgasmic. It is translated to bliss or ecstasy. When you are out of bounds, जब आप एक इस प्रकार के आनंद के अंदर होते हो, that is not just a simple pleasure. It is associated with the loss of boundaries. You lose your surroundings and merging with the object of pleasure. जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे होते हो तो then you receive this kind of heightened pleasure. Text offer this deeper disruptive pleasure because while reading text you are actively participating in the endless play of meaning rather than passively consuming a fixed ऑलरेडी कंप्लीटेड मैसेज. देखिए उसके अंदर जो प्लेजर है वो माइल्ड है क्योंकि किसी ने आपको बनाकर दे दिया है, लेकिन टेक्स्ट को रीडिंग के अंदर जो प्लेजर है इट इज डिफरेंट, सबवर्सिव, क्योंकि ये बाउंड्री को पुश करता है. इट चैलेंजेस यू टू एक्टिवली क्रिएट समथिंग. Barthes closes the essay by admitting that these 7 propositions, they are not theory, they are not systematic theory of a text. This is deliberate. Why? Because text cannot be presented detached, authoritative meta language. यही आइडिया तो रिजेक्ट कर रहे हैं कि मैंने एक बार बता दिया कि टेक्स्ट ये होता है, वर्क ये होता है, तो फाइनलाइज हो गया. इसी के अगेंस्ट तो आर्ग्यू कर रहे हैं. इट विल कॉन्ट्राडिक्ट द वेरी आइडिया ऑफ द टेक्स्ट व्हिच रेजिस्ट फिक्स अथॉरिटी. इसीलिए उन्होंने इसको डॉक्ट्राइन के बजाय प्रपोजिशन कहा कि आई एम जस्ट प्रपोजिंग कि मेरे लिए ये है. For Barthes, the only proper way to theorize the text is to actually write, since the theory of text can coincide only with the practice of writing. तो वापस से फटाफट 7 propositions देख लेते हैं. जो है द वर्क है वो एक फिनिश्ड ऑब्जेक्ट है, जबकि टेक्स्ट है एक मेथोडोलॉजिकल फील्ड है जो ओपन है. वर्क है नीटली इनटू जॉनरे, उसको आप फिक्स कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो, लेकिन टेक्स्ट को नहीं. वर्क वन फिक्स्ड मीनिंग के ऊपर क्लोज होता है, जबकि टेक्स्ट मीनिंग को एंडलेसली डेफर करता है. वर्क का एक सिंगल मीनिंग होता है और वो रेडिकली प्लूरल होता है. वर्क जो है फिलियल रिलेशनशिप रखता है, उसका एक फादर ऑथर होता है, जबकि टेक्स्ट का कोई सिंगल ओरिजिन नहीं होता है. वर्क को पैसिवली कंज्यूम किया जाता है रीडर के द्वारा, जबकि टेक्स्ट को एक्टिवली प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे एक प्ले या म्यूजिक पीस हो. वर्क जो है वो ऑर्डिनरी प्लेजर ऑफर करता है, जबकि टेक्स्ट जो है एक डीपर डिसरप्टिव एक्सटैटिक जूसा ऑफर करता है. दीज आर द 7 प्रपोजिशन एंड डिफरेंस. दोस्तों, from work to text is still an essential reading in literary theory because it shows post-structuralist shift away from the fixed authorship structuralist approach towards a literature as an open, active and endlessly generative process. दोस्तों, ये था आज का वीडियो. I hope that I was able to make you understand the key difference between a work and a text and उसके पीछे Roland Barthes के जो भी रीजन है. Very soon we will come with another video. Till then, keep watching, keep supporting. Thank you, friends.